Hello, good morning friends. Today we are discussing about the topic of mathematics which is related to profit and loss. Okay. First of all, we will discuss about the some concept related to profit and loss. Okay. Let's see what is the profit. First of all, we'll letting know about what is the profit. Profit is what the goods which are taking, which are purchased, and we are sell it again, and then what type of money we get that, or what type of profit we get, that amount that we get, this is known as profit. First of all, we will discuss about the what is the cost price. Cost price, what is the cost price? Okay, cost price is the price at which we purchase the goods. Okay, we purchase the good at which price, that amount is known as cost price. And the selling price, what is the selling price? The amount at which we sell the goods is known as selling price. And then what is the profit? Next concept is profit. Profit is that the amount at which we sold our good. Okay, the difference between selling price and the cost price. If selling price is more, then there is happening profit, and if cost price is more, this is the loss. Okay, if selling price is more, then it's a profit, and the formula for the profit is selling price minus cost price. Okay, this is selling price is more and cost price is less, and this subtraction is known as profit. And then what is the loss? Loss is the, in loss there is a cost price is more. If cost price is more, then loss is happen. What is the formula for the loss? Loss is cost price minus selling price. This is the formula for the loss. Okay, this is all about our concept related to profit and loss. Based on this all concept, four concepts, we'll discuss about the problems related to profit and loss. Let's discuss about the problems related to profit and loss. First problem we have, a Nana Sahib purchased an ox for 32,000. He spent the 1,500 on transportation to take it home. Okay, after 3 months, he sold it at 35,300 rupees. Okay, how much profit he earned for in this transaction? Here, अभी यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? नाना साहेब एक आदमी है जिन्होंने ऑक्स परचेज किया है. ओके, उसकी जो परचेस है, मतलब कॉस्ट प्राइस, उसकी जो कॉस्ट है ऑक्स की, वो है 32,000, और उसके ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है उन्होंने घर तक लाने के लिए उसे 1,500 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिए हैं. और 3 महीने बाद उनको ऐसा लगा कि इसे हमें सेल करना चाहिए, तो उन्होंने किस प्राइस पे सेल किया है इसको? 35,300 रुपीज पे सेलिंग प्राइस है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम में हमें बताया गया है ऑलरेडी कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है. तो कितना प्रॉफिट हो रहा है ये हमें यहाँ पे बताना है. ठीक है, वी सॉल्व अवर प्रॉब्लम. अभी इसकी हमें पहले कॉस्ट प्राइस निकालनी है. अभी कॉस्ट प्राइस के लिए क्या है? जो भी गुड्स की एक्चुअल प्राइस है और उसके ऊपर जो भी उनका ट्रांसपोर्टेशन या फिर लेबर्स का चार्जेस है उसमें जो ऐड करेंगे तो उनका फाइनल हमें कॉस्ट प्राइस आएगा. ठीक है, तो गुड की एक्चुअल प्राइस क्या है? 32,000 रुपीज. ओके, और जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उन्होंने होम तक लाने के लिए पे किया है वो है 1,500. इनका हम एडिशन करेंगे. अभी एडिशन आपको पता है, अब तक हमने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो इसके दौरान आपको पता चल चुका है कि एडिशन किस तरीके से करनी है. तो हम सीधा इसको ऐड कर देंगे. 2 0 0 है तो 0 0, और 0 + 5 कितना होगा? 5. 1 + 2 6 और 3. व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? क्या हुआ है यहाँ पे? 36,500. ओके,
तो यहाँ पे जो है 36,500 रुपीज का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है। अभी प्रॉफिट ही डिड अर्न, प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, अभी जहाँ पे यहाँ पे जो भी अमाउंट होगी, सॉरी इट्स नॉट 33,500 इज द कॉस्ट प्राइस, सॉरी फॉर दैट। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है या फिर लॉस निकालना है, इट डजंट मैटर। ओके, तो हम आपको समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल में नहीं दिया है यहाँ पे कि प्रॉफिट निकालना है कि लॉस निकालना है, उन्होंने बताया होगा हाउ मच प्रॉफिट और लॉस ही इनकर्ड और जितना भी क्या होगा वो, तो उस समय हमें क्या करना है, जो भी बड़ी अमाउंट होगी, अभी बड़ा अमाउंट इसमें क्या है 35,300 और 33,500, इसमें से बड़ा क्या है 35,300, तो हमें बड़ी अमाउंट पहले लिखेंगे 35,300 रुपीज माइनस जो भी छोटा अमाउंट रहेगा, छोटा अमाउंट क्या है 33,500। ओके, इनका अभी माइनस करना है, माइनस करना आपको यहाँ से आता है ऐसे, तो इस तरीके से करो, नहीं तो फिर इसको सीधा वर्टिकल हमें अरेंजमेंट करना है इसका, 35,300 माइनस 33,500। ओके, ये ऐसा हमने यहाँ पे अरेंजमेंट किया, 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0। अभी यहाँ पे हम एक बोरो कर लेंगे, 3 में से 5 हमें माइनस नहीं कर सकते, तो बोरो करें तो यहाँ पे कितना आएगा 13, 13 माइनस 5 यहाँ पे किया तो 8। ओके, तो यहाँ पे ये बोरो किया हो 1 वापस देंगे, 3 का ये हो जाएगा 4, 5 माइनस 4 1, मतलब 1800 रुपीज का यहाँ पे क्या होता है, नाना साहेब को प्रॉफिट हुआ है, 1800 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, जो उन्होंने 3 महीने बाद वो 18,000 कितना है, सेकेंड ऑप्शन में 1800 हमें आंसर है। चलो ये आपको समझ में आया है होपफुली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 240 notebooks were purchased at 300 rupees per dozen। पर डजन की प्राइस क्या दी है 300 रुपीज एंड सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 36 पर डजन। सेलिंग प्राइस क्या दी है उन्हीं की, मतलब यही 240 नोटबुक्स की सेलिंग प्राइस है 36 पर डजन। व्हाट इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या हुआ है ये हमें यहाँ पे निकालना है। सॉरी इट्स नॉट ओके per dozen and it's 30 per dozen, okay, it's not 300, it's 30 per dozen, at some mistake of typewriters। अभी यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस के लिए कितना है 240 नोटबुक दिए हैं, ओके, तो 240 नोटबुक्स है, उनकी हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। अभी 1 डजन नोटबुक की कितनी प्राइस है 30 रुपीज, तो अभी 240 मतलब कितने डजन यहाँ पे नोटबुक रहेंगे। अगर हमें ऐसा भी निकाल सकते कि 12 नोटबुक्स की प्राइस है 30 रुपीज, तो 240 नोटबुक्स की कितनी प्राइस रहेगी। अभी 12 नोटबुक के लिए 30 रुपीज प्राइस है, तो 240 जो नोटबुक है उनके लिए क्या प्राइस रहेगा। ओके, यहाँ पे x मान लेंगे क्या है, तो अभी इसका करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, 12 इंटू एक्स करो इज इक्वल टू 24 इंटू 30 करो, 240 इंटू 30 करेंगे यहाँ पे। ओके, अभी x मल्टीप्लीकेशन में है तो ये 12 यहाँ पे डिवीजन में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 240 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 12। ओके, अभी you know the table of 12, okay, 12 ones are 12, 12 ones are 12 and 12 twos are 24। ओके, तो यहाँ पे क्या अभी x की अमाउंट क्या है 20 इंटू 30, दैट इज कितना हुआ है 600। अभी क्या है ये 600 जो भी है 240 नोटबुक्स की कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस फॉर 240 नोटबुक।
नोटबुक को हम सिंपली नोट एनबी लिखेंगे, क्या है 600 रुपीज। ओके, और सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 36 पर डजन। अभी 36 पर डजन का प्रॉफिट है, तो अभी ये है 240 नोटबुक्स की प्राइस है। 36 पर डजन। यहाँ पे हमें इसी तरीके से सेलिंग प्राइस भी निकालना है। 12 नोटबुक्स के लिए हमें सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम। फॉर 12 नोटबुक्स वी हैव 36 रुपीज। ओके, एंड 240 नोटबुक्स के लिए कितना रुपीज लगेगा सेल करने के लिए। सेम यहाँ पे भी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 240 इंटू 36। 12 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, नेक्स्ट अपोजिट साइड में जाएगा तो डिवीजन में रहेगा। 240 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 12। 12 1 are 12, 12 2 are 24, wait 20 इंटू 36। ये कितना हुआ, इनका मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 720। देन सेलिंग प्राइस फॉर 240 नोटबुक, फॉर 240 नोटबुक। ओके, अभी यहाँ पे हमने हमारे लिए जरूरी ये दो चीजें हैं, कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज द सेलिंग प्राइस फॉर 240 नोटबुक्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमें फॉर्मूला पता है प्रॉफिट का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अभी सेलिंग प्राइस क्या है, इधर निकाला है हमने 720 रुपीज, और कॉस्ट प्राइस हमने क्या निकाला था 600 रुपीज। ओके, प्रॉफिट इनका अगर माइनस कर देंगे इसको हम 0 बाय 0 2 में 120। प्रॉफिट कितना हुआ 120 रुपीज का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता है। ठीक है, 120 रुपीज का प्रॉफिट होता है। अभी यहाँ पे प्राइजेस दिए हैं हमें पर डजन में दिए गए हैं, तो ओके लेट मी चेक अबाउट द ऑप्शंस व्हाट वी हैव हियर। यस वी विल गेट। अभी यहाँ पे हमें क्या जो ऑप्शन बताया गया था क्वेश्चन में कि व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन 36 पर डजन, ये जो सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर क्या प्रॉफिट है, तो वो हमने निकाल दिया है। उसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा अपने को 720। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वही हमारा आंसर है। ठीक है, दैट आई वाज कंफ्यूज दैट कि हमें दोनों में से कम निकालना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शामू परचेस 36 चीकू एट द रेट ऑफ ₹10 फॉर 2। अभी शामू परचेस 36 चीकू एट द रेट ऑफ ₹10 फॉर 2 एंड सोल्ड देम एट 24 फॉर ₹24 फॉर 4। व्हाट डिड ही मेक प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ मच। तो यहाँ पे क्या है, हमें दिया नहीं है क्वेश्चन में कि शाम को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, वो तो हमें खुद ही पहचानना है उससे। भी क्वेश्चन में दिया क्या है, शामू परचेस 36 चीकू परचेस किया है, वह भी 10 फॉर 2 एंड सोल्ड देम एट 24 फॉर। अब इसमें क्या है, इसने प्रॉफिट बनाया कि लॉस बनाया, ये हमें फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी 36 चीकू परचेस किए हैं शामू ने। रेट क्या है 10 फॉर 2, मतलब 10 रुपीज के 2 चीकूस है, तो 36 रुपीज सॉरी 36 चीकूस की क्या प्राइस रहेगी। तो 1 चीकू के लिए कितना रहेगा, 1 चीकू के लिए कितना प्राइस है, तो यहाँ पे हम एक्स करेंगे 10/2। तो 1 चीकू प्राइस फॉर 1 चीकू इज 5 रुपीज। 1 is 5 rupees. Then how much is for 36 चीकूस। ओके, 1 चीकू की प्राइस है हमें पता है 5, 36 चीकूस की कितनी प्राइस है x, x इज इक्वल टू 5 इंटू
36 करो, अभी क्या है 5 6 30, देन 3 है, 3 और रहेंगे 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 3 80, 180। प्राइस फॉर 36 चीकू कितना है 180 रुपीज। देन अभी क्या है 24 फॉर 4, अभी सेलिंग प्राइस निकाला है, अब कॉस्ट प्राइस हमें कितना मिला है 180 रुपीज। ओके, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी सेम है 24 फॉर 4 क्या है, तो 1 चीकू का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 1 चीकू सेलिंग प्राइस क्या है 24 बाय 4 करेंगे हम सीधा, ठीक है 4 6 24। ओके, अभी 6 रुपीज पे एक चीकू उन्होंने सेल करा है, तो 36 चीकूस का सेलिंग प्राइस क्या है, 36 चीकूस का सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे 6 इंटू 36। ओके, इनका मल्टीप्लीकेशन करो, 6 6 36, 3 यहाँ पे 6 3 18, 18 प्लस 3 21। सेलिंग प्राइस हमारा क्या है 216 रुपीज एंड कॉस्ट प्राइस क्या आया है 180 रुपीज। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अभी यहाँ पे हमें नहीं पता है उसमें क्या हुआ है, इधर क्या है कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन इट व्हाट हैपेंस, प्रॉफिट हैपेंस। तो अभी यहाँ पे हमें क्या है प्रॉफिट हुआ है, इतना तो पता चल गया है, बाकी कुछ लॉस के 2 ऑप्शन है उनको हम कैंसिल कर सकते हैं सीधा, मतलब ये हमारे आंसर में रहेगी ही नहीं। अभी प्रॉफिट कितना हुआ है उसको निकालने के लिए हमें सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करना पड़ेगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज 216, ओके, माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है 180। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 36, मतलब प्रॉफिट कितने रुपीस को हुआ है 36। होप यू गेट द प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे हमने क्या सीखा है, इलिमिनेट कैसे करना है ऑप्शंस को। अगर आपको समझ में नहीं आता फाइनल आंसर तो पहुंचा नहीं जाता है, तो इलिमिनेशन मेथड से जाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल द कॉस्ट प्राइस, देन व्हाट इज द प्रॉफिट। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, कॉस्ट प्राइस हम समझ लेते हैं कि x, ओके, एंड सेलिंग प्राइस समझ लेते हैं डबल द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के डबल है, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ x। ओके, अभी प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है 2x माइनस x करेंगे, x 2x माइनस x किया तो क्या है x। प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट प्राइस जितना था उतना ही रहेगा, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन नंबर 2, वी गेट द प्रॉब्लम। ओके, हाँ, नेक्स्ट, आकाश परचेज अ साइकिल फॉर 3250 rupees and then sold it for 2375 rupees after a year. Okay, did he make a profit or incurred a loss? How much? अभी यहाँ पे क्या है, आकाश ने एक साइकिल परचेस किया था 3250 रुपीज को। अभी 1 साल बाद उसने क्या किया, उसको यूज करा, बोर हो गया वो, तो उसके बाद उसको क्या लगा कि अपने को ये साइकिल बेचनी है और कोई और हम खरीद लेंगे। तो अभी वो बेचा है उसने, तो क्या अमाउंट पे बेचा है उसने 2375 रुपीज पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अभी उसने जो है आकाश को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, इससे हमें ये निकालना है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, पहले जो अमाउंट होगा उससे हमें छोटे अमाउंट को माइनस करना है। हमारे पास क्या है, परचेस, परचेस किया मतलब कॉस्ट प्राइस रही, कितनी है कॉस्ट प्राइस 3250 रुपीज, दैट्स ओके, एंड सेलिंग सोल्ड इट फॉर 2375 रुपीज। सेलिंग प्राइस क्या रहेगा 2375 रुपीज, ये भी ठीक है, ठीक। अभी इसमें क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है, ये निकालना है हमें।
इसी से समझ में आया होगा आपको कि प्रॉफिट है या लॉस है। यहाँ पे मोर क्या है, कॉस्ट प्राइस है, सबसे ज्यादा बड़ी कीमत किसकी है, तो ये है मोर नंबर, मतलब ग्रेटर नंबर कौन सा है यहाँ पे, ये है 32,500। जब कॉस्ट प्राइस इज, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज मोर देन व्हाट हैपन, इट इज द लॉस। ओके, अभी लॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस क्या है, 32,320 माइनस 2,375, इसको हमें माइनस करना है, इसका सब्ट्रैक्शन करना है। इस तरीके से नहीं आएगा तो सीधा हमारा 2375। ओके, माइनस करें, यहाँ पे 0 में से 5 जाएगा क्या, नहीं, तो बोरो करेंगे हम, 10 होगा, 10 में से 5 गया 5, ये बोरो किया हुआ 6 वापस होएगा, तो 7 का 6 हुआ ये। ठीक है, यहाँ से हम बोरो करेंगे 5, तो ये 15 हो जाएगा, 15 में से 6 गए तो 9, यहाँ पे फिर से रिटर्न दे देंगे 2 हो जाएगा, तो फिर से बोरो करेंगे, ये होगा 12, 12 में से 2 है, कितना है ये, सॉरी 2 में से, सॉरी यहाँ पे बोरो करने की जरूरत नहीं है, 2 में से 2 गए तो 0 और 3 में से 2 गए 1, 1095 रुपीज का जो है इसको लॉस हुआ है। ठीक है, 2375 5 1 मिनट अभी हो गया 9 minus 3 4 ओके, हियर इज द 875। यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, सेकेंड नंबर ऑप्शन, लॉस इज कितना हुआ है 875 रुपीज का हमें लॉस हुआ है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था उधर। मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। गौरी स्पेंट 350 rupees for repairing TV set, which was purchased for 14,500. After some day, she sold it for 16,000 rupees and she make a profit or income. अभी यहाँ पे क्या किया है, गौरी ने एक टीवी खरीदा था। ओके, गौरी ने एक टीवी खरीदा था, वो खराब हो गया कुछ दिनों बाद, तो उसने क्या किया, रिपेयरिंग करने के लिए, टीवी की रिपेयरिंग करने के लिए 350 रुपीज उस पर खर्च कर दिए। जो परचेज, जो प्राइस है, रिपेयरिंग की प्राइस है टीवी के, कितना है वो, 350 रुपीज। ओके, और उसने जो परचेज की थी टीवी की कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस क्या है 14,500 रुपीज। ओके, कॉस्ट प्राइस, अभी ये ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस तो ये है, बट अभी उसने इतना, ये जो अमाउंट है रिपेयरिंग पे खर्च किया है, तो कॉस्ट प्राइस में ही उसका एडिशन हमें कर देंगे, जो कि हमें फाइनल कॉस्ट प्राइस मिलेगा। कॉस्ट प्राइस अभी कितना आया है 058 14,850, ये रहेगी टीवी की कॉस्ट प्राइस। अभी सेलिंग प्राइस फॉर द टीवी कितना है, शी सोल्ड 16,000 रुपीज, 16,000 रुपीज को उसने सेल किया है, 16,000 रुपीज को सेल किया है। अभी यहाँ पे जो है हमें पता है सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या है, मोर आया है, तो 16,000 रुपीज को यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो लॉस वाले दो ऑप्शन निकाल देंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट और थर्ड, इसमें से एक आंसर होगा हमारा। ठीक है, अभी प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अभी 1600 माइनस 1485 ये है। अभी इसको क्या करेंगे हम, माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है यहाँ पे, तो प्रॉफिट, सॉरी लॉस कितना हुआ है हमें को 051
1. ओके, तो 1150 रुपीज का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता है। ऑप्शन नंबर 3। Move on to next problem. When shirt is sold for 400 rupees, okay, the profit earned is 3/8 times the selling price. Then what is the cost price of the shirt? अभी यहाँ पे क्या है, शर्ट की सेलिंग प्राइस है 400 रुपीज, ओके, और शर्ट जो है सेलिंग प्रॉफिट जो हुआ है उसके ऊपर 3/8 टाइम्स ऑफ द सेलिंग प्राइस। अभी सेलिंग प्राइस दिया है हमें 400 रुपीज, ओके, प्रॉफिट कितना है 3/8 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस, ओके, ऐसा है। तो यहाँ पे 3/8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 400 रुपीज से, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो यहाँ पे कितना है 50। प्रॉफिट कितना हुआ है हमें 3 × 50, कितना होता है ये 150 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ है। अभी कॉस्ट प्राइस को हमें निकालना है। कॉस्ट प्राइस क्या थी शर्ट की, तो प्रॉफिट के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ओके। तो कॉस्ट प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस में इस साइड में चला जाएगा तो प्लस में आएगा, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट यहाँ पे प्लस में है तो उस साइड में माइनस में जाएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस 400 रुपीज, प्रॉफिट हुआ हमें 150 रुपीज का। तो अभी जो है कॉस्ट प्राइस इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा हमें आंसर 250 रुपीज। कॉस्ट प्राइस क्या थी शर्ट की 250 रुपीज। ऑप्शन नंबर 3 में जो है हमारा आंसर है। ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे ट्रिक यहीं पे दिया था सिर्फ कि 3/8 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस की 3/8 टाइम्स वहाँ पे उनको प्रॉफिट हुआ है, तो वो सेलिंग प्राइस को 3/8 से हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना था। अभी रामू परचेस, ये जो क्वेश्चन है हमने चीकू का क्वेश्चन किया था उसी समय उसी के जैसा ही है, तो उसे ये जो आप है आपके लिए होमवर्क में आप इसको सॉल्व करना। अगर इसमें कोई डाउट होता है, क्वेरी होता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी सेम ही है। यहाँ पे जो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिए है, उसको हमें माइनस करें बड़े नंबर से छोटा नंबर, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है देखे, और जो आंसर होगा उसे आप कीजिए। ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। देन प्रदीप बॉट अ मोबाइल फॉर ₹22.5 10 अभी सेम ही क्वेश्चन है, जिस तरीके से हमने जो टीवी का क्वेश्चन लिखा था, टीवी परचेज करा था, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है। तो उसमें क्या होता है, लॉस हुआ है, ये तो उन्होंने पहले से ही बताया है। यहाँ पे आप करेंगे, कॉस्ट प्राइस दिए है ₹20,500, ओके, 22,500। कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी, ये 22,500 के लिए 500 अलग से, एंड सोल्ड देम फॉर ₹19,800। ये सेलिंग प्राइस। अब इसको माइनस करो और जो आंसर आएगा वो है आपका लॉस। इसी के साथ जो है हमने जो एक्सरसाइज है आपका 24.1 वो कंप्लीट करा है, ओके। होपफुली आपको ये सारी अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। वेल, गुड लक। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट डे देख लेंगे। थैंक यू।